Hello and welcome to Pharma Career Hub. I am Dr. Sonal Solanki and I welcome you in today's video. Today we are going to talk on HPLC Part 5 interview questions for QC jobs. I hope you are enjoying our pharma placement series and finding useful for your interview preparation. We will also continue our discussion on HPLC and cover some of the advanced interview techniques which are used for the QA/QC interviews. Okay, so some of the topics which we will be covering, they are the UPLC, HPLC and difference between the HPLC and the UPLC. Also some of the troubleshooting problems which are used in HPLC, and we will also check why system suitability test is done, how is it performed, okay, and finally some of our HR questions. So let's begin with our video without further ado. Okay, so what is UPLC? Okay, so as the name indicates, UPLC is the ultra performance liquid chromatography. Okay, so जैसे कि HPLC is high performance liquid chromatography, UPLC is the ultra performance liquid chromatography. Okay, so it is again an advanced analytical chromatographic technique which uses the smaller size of the particles in the packed column and higher pressure, and also optimize instruments to achieve the faster resolution of the column separate to the as compared to the HPLC. Okay, तो HPLC के comparison में UPLC is a very powerful analytical chromatographic technique. Okay, so इसमें क्या है कि particle size जो stationary phase की है वो बहुत ही ज़्यादा कम use करते हैं and column is very packed. Because of that we make use of a higher pressure pump or the higher pressures are used. Okay, so over here you can see in the diagram that there is a normal diagram of the HPLC, but only one difference is in the column packing. Okay, तो column packing में इसे difference है. UPLC में जो column size use करते हैं particles की वो है sub micron level पे. Okay, and it UPLC operates at a higher pressure of above 1500 psi and also provides a faster analysis with a higher resolution. Okay, it is also used for the हायर सेंसिटिविटी एंड द पीक कैपेसिटी. ओके, तो उसमें जो सेंसिटिविटी होती है वो हायर साइड पे होती है एज कंपेयर टू द HPLC. ओके, एंड वो हाई थ्रूपुट एनालिसिस जो जब भी हम परफॉर्म करते हैं उसके लिए UPLC इज द बेस्ट और द आइडियल मेथड. ओके, अब हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द UPLC and the HPLC. Okay, so HPLC, as you know, it is a high performance liquid chromatography and UPLC मतलब कि ultra performance high liquid chromatography. Okay, sorry, ultra performance liquid chromatography. Okay, particle size जो है HPLC का वो है 3 to 5 माइक्रोमीटर्स में और UPLC का पार्टिकल साइज रेंज करता है बिलो 2 माइक्रोमीटर. ओके, तो बिलो 2 माइक्रोमीटर मतलब टिपिकली बिलो 1.7 माइक्रोमीटर और सो. ओके, सिमिलरली ऑपरेटिंग प्रेशर्स जो है वो HPLC में 400 बार्स या 6000 PSI के अप्रोक्सीमेट रहते हैं HPLC में, और UPLC में द प्रेशर्स रेंज अप टू 1000 to 1500 बार्स which is approximately equal to 15,000 PSI. ओके, तो आप देखिए प्रेशर कितना 3 गुना ज्यादा हमने UPLC में यूज किया है. तो आप ऐसा याद रख सकते हैं 5000 PSI इन HPLC, 15,000 PSI इन UPLC. ओके, सिमिलरली जो कॉलम का इंटरनल डायमीटर होता है वो HPLC में 4.6 मिलीमीटर्स का होता है और UPLC में जस्ट 2.1 मिलीमीटर का कॉलम का इंटरनल डायमीटर होता है. ओके, वैसे ही फ्लो रेट की अगर बात की जाए तो HPLC का जो फ्लो रेट होता है वो टिपिकली 1 ml पर मिनट होता है और UPLC का फ्लो रेट होता है 0.1 to 0.5 ml पर मिनट. ओके, तो ये चीज आप याद रखिए दोस्तों, क्योंकि उसका फ्लो रेट जो है वो 10 टाइम्स कम होता है एज कंपेयर टू द UPLC. ओके, तो एनालिसिस टाइम आप बताइए कैसा होता है. तो HPLC में एनालिसिस टाइम लॉन्गर होता है. ओके, और UPLC में HPLC की वजह से HPLC के कंपैरिजन में शॉर्टर टाइम होता है. ओके, ऐसा क्यों दोस्तों आप बताइए. ओके, सो नीचे कमेंट में आप जरूर बताइए कि क्यों ऐसा होता है कि हम जो फ्लो रेट होता है UPLC का बहुत कम है फिर भी जो रन टाइम है, एनालिसिस टाइम है वो शॉर्टर होता है. ओके, तो ऐसा क्यों है. तो ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि HPLC में जो है आपका फ्लो रेट भले कम हो, ओके, बट उसमें जस्ट सेकेंड, HPLC में भले आपका फ्लो रेट ज्यादा हो बट प्रेशर कम है, और UPLC में आपका भले
फ्लो रेट बहुत ही ज़्यादा कम है, 10 टाइम्स कम है, बट प्रेशर आपने 3 टाइम ज़्यादा लिया है। ओके, इस वजह से उसका एनालिसिस टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है दोस्तों। इसीलिए इसको हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, जहाँ पे ड्रग्स को हम स्क्रीन करने वाले होते हैं, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं कंपाउंड्स को फटाफट स्क्रीन करने के लिए। ओके, वैसे ही अगर रिजोल्यूशन की बात की जाए तो HPLC का रिजोल्यूशन तो गुड है ही, बट UPLC का रिजोल्यूशन बेस्ट होता है दोस्तों। ओके, और सेंसिटिविटी का भी कुछ ऐसा ही है, HPLC का रिजोल्यूशन गुड है और UPLC का बेस्ट होता है। ओके, सिमिलरली अगर सॉल्वेंट कंजम्पशन की बात की जाए तो HPLC ज़्यादा सॉल्वेंट कंज्यूम करेगा, UPLC कम सॉल्वेंट कंज्यूम करेगा। ओके, तो वो तो आपका गाड़ी के माइलेज के जैसा है दोस्तों। आप माइलेज की तरह इसको याद रख सकते हैं कि गाड़ी में अगर जो आपकी बाइक है, अगर नॉर्मल बाइक है तो उसका जो आपको एवरेज मिलेगा वो कितना मिलेगा। ओके, सो 20-25 अगर आपको एवरेज मिल रहा है एक बाइक का। ओके, वैसे ही अगर आपको सुपर बाइक है या हाई मॉडल की कोई बाइक है, उसका एवरेज आपको डेफिनेटली कम ही मिलेगा। वैसे ही है यहाँ पे सॉल्वेंट जो होता है वो इसी तरीके से ज़्यादा कंज्यूम होता है। ओके, नॉर्मल HPLC में सॉल्वेंट यहाँ पे ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट इज अ इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट। तो इंस्ट्रूमेंटेशन का कॉस्ट मैंने आपको बताया है, HPLC का कॉस्ट 20 to 50 लाख होता है और UPLC का कॉस्ट तो उससे भी ज़्यादा होता है, 50 से ज़्यादा, 50 to 80 लाख या उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, एप्लीकेशन में HPLC जो है वो रूटीन काम के लिए यूज़ होता है और UPLC जो है वो बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स आपको स्क्रीन करके निकालने हैं, दैट इज़ हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, उसके लिए यूज़ होता है। ओके, सिमिलरली अभी हम देखेंगे कॉमन ट्रबल शूटिंग HPLC प्रॉब्लम्स। ओके, तो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए इसका वीडियो हमने सेपरेटली बनाया था ताकि इसके ऊपर हम एलैबोरेट डिस्कशन कर सके। ओके, तो बात करते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स की जो HPLC में देखे जाते हैं। ओके, तो क्या आप हो सकता है। ओके, तो HPLC में आप ऐसा देखते हो, फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट यू आइदर ऑब्जर्व नो पीक्स और वेरी स्मॉल पीक्स। ओके, मतलब कि अगर आपको क्रोमेटोग्राम कैसा दिखेगा आपका, ऑलमोस्ट इट इज लाइक अ फ्लैट बेस लाइन। ओके, तो आपकी बेस लाइन एकदम ही फ्लैट है या पीक्स उसमें इतने छोटे छोटे हैं कि वो एक फ्लैट बेस लाइन को ही रिजेंबल करते हैं। ओके, तो उसका पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है। ओके, आप बताइए, उसका पॉसिबल कॉज ये हो सकता है कि उसका इंजेक्टर सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है या उसका जो प्रॉपर सेटिंग है वो वर्क नहीं कर रहा है। ओके, जो कॉलम है वो कॉलम का जो ओवन होता है वो ऑफ हो सकता है लो टेम्परेचर पे, या तो फिर कॉलम में लीक्स हो सकते हैं इंजेक्टर में, या कॉलम में भी कभी कभी लीक्स होते हैं। ओके, तो जब इंजेक्टर में लीक हो, कॉलम में लीक हो, ओके, तो मोस्टली जो प्रॉब्लम एनकाउंटर होता है वो इंजेक्टर या कॉलम की वजह से होता है। ओके, कभी कभी डिटेक्टर भी अगर प्रॉपरली नहीं चल रहा होता है, डिटेक्टर का आपने कैलिब्रेशन नहीं किया होगा, तो भी आपको फ्लैट बेस लाइन देखने को मिलेगी। ओके, और अगर कभी आपने रॉन्ग इंजेक्ट किया होगा सैंपल या डाला ही नहीं होगा, उस केस में भी आपको एक फ्लैट बेस लाइन देखने को मिलेगी। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, आप इसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हो। ओके, सो आप इसको रेक्टिफाई ऐसे करोगे कि आइदर आप चेक करोगे कि वो कॉलम का या इंजेक्टर का ऑटो सैम्पलर का सेटिंग कितना है। ओके, सो यू विल चेक कि ऑटो सैम्पलर का सेटिंग कितना है, इंजेक्टर का सेटिंग प्रॉपरली आपने चेक किया है कि नहीं ड्यूरिंग कैलिब्रेशन। ओके, यू विल चेक फॉर द लीक्स, अगर आपने प्रॉपरली सॉल्यूशन को डीगैस किया है, बबल्स रिमूव किए कि नहीं। फिर लीक डिटेक्टर से आप लीक फाइंड आउट करोगे कि कॉलम में लीक है या ऑटो इंजेक्टर में लीक है। फिर सैंपल को भी आप वेरीफाई करोगे इंजेक्शन वॉल्यूम प्रॉपरली पास हो रहा है कि नहीं। ओके, तो जो ऑटो इंजेक्टर है उसको भी आप कैलिब्रेट करके चेक करेंगे कि सैंपल का इंजेक्शन का वॉल्यूम प्रॉपरली पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, व्हाट इज पीक टेलिंग। ओके, तो आप देखो यहाँ पे क्रोमेटोग्राम आपका इस तरीके से दिखेगा कि जो नॉर्मल पीक है वो एकदम लंबा ऐसा खींचा हुआ है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ टेलिंग पीक। ओके, मतलब उसको एक टेल आई हुई है। ओके, तो अगर ये कब पॉसिबल है कि ऐसा, उसका रीजन ये है कि एक्टिव साइट्स इन कॉलम, मतलब कि अगर आपका जो कॉलम है वो कंटेमिनेट हो चुका है किसी रीजन की वजह से। ओके, तो उसकी वजह से भी जो कॉलम में अगर कंटेमिनेशन हो प्रीवियस एल्यूट का, तो अगर वो बचा है तो उसकी वजह से क्या होगा, वैसे टेलिंग आपको देखने को मिलेगी। कुछ प्रीवियस सब्सटेंसेस वो कॉलम में रह गए हैं, प्रॉपरली वॉशिंग नहीं हुआ है वो कॉलम का, तो आपको इस तरीके की टेलिंग देखने को मिल सकती है। ओके, इसके साथ साथ ही अगर जो कॉलम का जो ओवरलोड हो चुका है, ओके, तो अगर आप एक इमेजिन करिए एक पाइप है, वो पाइप में से आप पास कर रहे हो और अगर
अगर वो पाइप चोक अप हो जाता है तो उसके ऊपर एक लोड बढ़ जाता है। ओके, तो इस केस में अगर जो वो कॉलम लोडेड है, ओके, तो बहुत ज़्यादा ओवर पैक्ड है, तो इस केस में भी आपको ऐसे टेलिंग देखने को मिल सकती है। ओके, या अगर आपने रॉन्ग लाइनर यूज़ किया है या अंदर से प्रॉपर क्लीनिंग वॉशिंग नहीं किया है, तो वो लाइनर जो है वो डर्टी होता है, तो उसकी वजह से भी आपको ऐसे टेलिंग देखने को मिलती है। ओके, अगर आपका सोल्यूशन जो है वो आपका प्रॉपर पीएच का नहीं है, मतलब कि आपने रॉन्ग पीएच यूज़ किया है एसिडिक बेसिक कंपाउंड्स का, उसका पीएच प्रॉपर्ली आपने चेक नहीं किया है, बफर्स यूज़ नहीं किए हैं, ओके, तो उसकी वजह से भी आपको टेलिंग देखने को मिल सकती है। ओके, और अगर जो कॉलम बहुत पुराना है, डिग्रेड हो रहा है, ओके, तो उस केस में भी आपको टेलिंग दिख सकती है। तो वन ऑफ द केस ये हो सकता है कि आपका कॉलम पुराना है और वो दैट नीड्स अ रिप्लेसमेंट। ओके, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है दोस्तों? तो सॉल्यूशन ये है कि आपको जो कॉलम है वो इधर उसकी कंडीशन चेक करके उसको टाइमली रिप्लेस कर देना है, तो ये टेलिंग का प्रॉब्लम आप ओवरकम कर सकते हो। सेकेंड ये कर सकते हो, आपकी जो सैंपल साइज है ऑटो इंजेक्टर से आप डालने वाले हो वो आप रिड्यूस कर सकते हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी कम कर सकते हो। ओके, देन ओके दोस्तों, तो पीक फ्रंटिंग का मतलब यही होता है कि पीक इधर ऐसे पीछे की तरफ झुका हुआ है या आगे की तरफ झुका हुआ है। ओके, तो उसका भी सिमिलर रीजंस होते हैं पीक टेलिंग के जैसे ही, जैसे कि कॉलम में ओवरलोड होना। देन सेकेंड इज अ रॉन्ग इंजेक्शन टेक्निक, आपने अगर रॉन्ग इंजेक्शन टेक्निक यूज़ की है, या कॉलम अगर आपका कंटेमिनेट हो चुका है, मतलब प्रीवियस इल्यूट जो आपके अंदर ही रह गए हैं, प्रॉपर वॉशिंग नहीं हुआ है, तो उसको भी कंटेमिनेशन कहते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है। या जो टाइमिंग है वो रॉन्ग, सॉरी, जो लाइनर है वो अगर आपने रॉन्ग यूज़ किया है, ओके, छोटा बहुत शॉर्ट लाइनर अगर आपने अंदर यूज़ किया है, और अगर जो आपका इनलेट टेम्परेचर है वो भी अगर आपका ज़्यादा हुआ, तो ऐसे पीक जो है वो आज से पीछे झुक सकता है या आगे झुक सकता है। ओके, तो दिस टाइप ऑफ द फ्रंटिंग प्रॉब्लम्स कैन हैपन। अभी ये आप ओवरकम कैसे करोगे? ओके, तो ये ओवरकम करने के लिए इधर आपको जो सैंपल है उसका अमाउंट रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे ही हमने आगे बात की थी वही सिमिलर सॉल्यूशन यहाँ पे भी है। इधर वो जो कॉलम है वो आपका सैंपल आप कम कर दीजिए, या तो फिर इंजेक्शन का जो टेक्निक है वो चेंज कर दीजिए, या अप्रोप्रिएट लाइनर आप अप्रोप्रिएट लाइनर यूज़ करिए, या तो फिर आप वो इनलेट टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमाइज करिए, मतलब कि बहुत ही हाई भी नहीं होना चाहिए और लो भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये आप कर सकते हो। अभी कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ नॉइजी बेस लाइन। ओके, तो नॉइजी का मतलब ये नहीं है कि बहुत नॉइज ऐसे कान से आना, नॉइजी का मतलब ये है कि पीक्स बहुत ऊपर नीचे होना। ओके, सो उसको कहते हैं नॉइजी बेस लाइन। ओके, तो उसका पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है कि कंटैमिनेटेड डिटेक्टर और कॉलम। ओके, तो अगर जो आपका कॉलम कंटैमिनेटेड है, डिटेक्टर कंटैमिनेटेड है, तो ये एक रीजन हो सकता है। या आपका जो अंदर का सेप्टम है, वो लाइनर है, वो डर्टी हो सकता है, एयर या मॉइस्चर हो सकता है सिस्टम में। ओके, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर कैरियर गैस फ्लो हो सकता है। ओके, मतलब कि उसके साथ साथ अगर आपने प्रॉपर डी गैसिंग नहीं किया तो सॉल्वेंट के साथ साथ गैस भी मूव हो सकता है। ओके, तो उसको कहते हैं कैरियर गैस फ्लो, जो जो आपको ऐसे ऊपर नीचे ऐसे बबल्स या ऐसे कॉज कर सकते हैं, नॉइजी बेसलाइन को कॉज कर सकते हैं। ओके, तो इसके पॉसिबल सोल्यूशन यही हो सकते हैं कि डिटेक्टर को क्लीन करिए, ओके, कॉलम को चेंज करिए, सेप्टम को रिप्लेस कर दीजिए, लाइनर को या सेप्टम को, और या तो फिर पर्जिंग कीजिए। पर्जिंग का मतलब क्या है कि मोबाइल फेस को फ्लश करना। ओके, तो नया मोबाइल फेस जब अंदर जाएगा, ओके, तो क्या करेगा, जो पुराने चीज़ें हैं उसको बाहर निकालेगा, सिस्टम को स्टेबिलाईज करेगा, प्रेशर कम कंट्रोल करेगा। ओके, तो ये आप कर सकते हैं। या तो फिर और एक चीज़ आप कर सकते हैं कि जो मोबाइल फेस है वो प्रॉपरली डीगैस करके भी अंदर बेच सकते हैं। ओके, सो चेकिंग द इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। ओके, तो आप इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी प्रॉपरली चेक करो कि ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। ओके, सो प्रॉपर अगर फ्लो नहीं हो रहा है कॉलम को फ्लो रेट, तो भी ऐसा हो सकता है। ओके, तो कैरियर गैस प्रेशर भी उसमें जो है वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कैरियर गैस नहीं आएगा, यहाँ पे मोबाइल फेस आएगा, कैरियर गैस आएगा जीसी में दोस्तों। ओके, तो ये यहाँ पे मेरी थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ओके, नेक्स्ट इज अ इरिप्रोड्यूसिबल रिटेंशन टाइम। ओके, मतलब क्या कि ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो पीक्स है वो शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, तो जो पीक जहाँ पे आना चाहिए वो वहां से उसके आगे आया हुआ है या पीछे आया हुआ है। तो जब ऐसा पीक आगे या पीछे शिफ्ट हो जाए उसको हम कहेंगे रिप्रोड्यूसिबल रिटेंशन टाइम। तो मतलब कि वो जहाँ पे आना चाहिए वहां पे वो नहीं आया, तो वो रिप्रोड्यूसिबल नहीं है वो रिटेंशन टाइम। और ये एक बहुत बड़ा व्हाट यू कैन से डिफेक्ट है दोस्तों, तो ये रेक्टिफाई होना चाहिए इमीडिएटली। ओके, तो उसका रीजन क्या है वो जानते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ? एक तो पहले टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की वजह से,
नेक्स्ट इज अ कॉलम इज नॉट प्रॉपरली इक्विलिब्रिएटेड, ओके, मतलब कि उसका टेम्परेचर है वो प्रॉपरली हाई लो नहीं है इनलेट का, उसकी वजह से उसके बाद जो है वो मोबाइल फ्लो जो है वो प्रॉपरली नहीं है मोबाइल फेज का, ओके। उसके बाद जो सिस्टम है उसमें लीक्स है या कॉलम आपका डिग्रेड हो चुका है, ओके। ये केसेस में ये ऐसा पीक का आगे पीछे शिफ्टिंग हो सकता है, ओके। तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, तो आप सबसे पहले तो उसका टेम्परेचर चेक करिए, ओके। ओवन का टेम्परेचर आप चेक करेंगे, इक्विलिब्रेशन टाइम चेक करोगे, ओके। उसके बाद जहाँ पे भी कॉलम लीक है वो चेक करोगे आप, ओके। और उसके बाद आप कॉलम को रिप्लेस भी करोगे, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द राइट थिंग्स टू डू कि आप कॉलम की आप ये चेक करिए कि उसका एक्सपायरी डेट कब है, मतलब कि कितना यूज हो चुका है, कितना डैमेज हो चुका है, और फिर उसको रिप्लेस करिए। नेक्स्ट इज अ ब्रॉड पीक, ओके। तो पीक अगर आपको शार्प नहीं मिल रहे, ऐसे ब्रॉड पीक मिल रहे, तो दैट इज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इस केस में आपको कॉलम ओवरलोड हो रहा है, हाई इंजेक्शन वॉल्यूम की वजह से ऐसा हो सकता है, या तो फिर कॉलम वापस कंटामिनेटेड हो सकता है, ओके। और या तो फिर वॉल्यूम उसका हाई डेड वॉल्यूम भी हुआ हो सकता है, ओके। मतलब क्या कि उसमें वॉल्यूम जो है उसके प्रोपोर्शन में फ्लो रेट नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं हाई डेड वॉल्यूम, ओके। सो आप क्या कर सकते हो इस केस में, तो आप सैंपल का साइज रिड्यूस कर सकते हो, सैंपल लोड रिड्यूस कर सकते हो, ओके। अगर आप 1 ml या दे रहे हो तो आप उसकी जगह पे 0.5 ml दे सकते हो, तो सैंपल लोड आप कम कर सकते हो, इंजेक्शन का वॉल्यूम कम कर सकते हो, ओके। देन क्लीन रिप्लेस कर सकते हो कॉलम को, ओके। उसके बाद आप अप्रोप्रिएट कॉलम यूज करो, जहाँ पे C8 यूज करना है वहाँ पे C8 यूज करो, जहाँ पे C18 यूज करना है वहाँ पे C18 कॉलम का यूज करो, ओके। वैसे आप राइट कॉलम का यूज करो, ऑप्टिमाइज करो सिस्टम को, जैसे कि फिटिंग है, ट्यूबिंग है, लाइनर्स है, फिर पर्जिंग है, ये सारे सिस्टम्स आप अगर प्रॉपरली यूज करेंगे तो आपको पुअर रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो रेजोल्यूशन आपको अच्छा मिलेगा, ओके। सो लास्ट में आते हैं व्हाट इज सिस्टम सुटेबिलिटी चेक, ओके। तो सिस्टम सुटेबिलिटी टेस्ट इज अ सेट ऑफ टेस्ट विच आर कैरिड आउट विद द क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम, ओके। तो क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम को प्रॉपरली चेक करते हैं हम हर एक स्टेज पे, उसको हम कहते हैं सिस्टम सुटेबिलिटी चेक, ओके। सो इट वेरीफाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कॉलम एनालिटिकल सिस्टम बिफोर द एनालिसिस, ओके। तो एनालिसिस करने से पहले आपको सिस्टम सुटेबिलिटी चेक रन करनी, ओके। सो दोस्तों इसके पुराने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस 1-2 वीडियोस में हमने सिस्टम सुटेबिलिटी कैसे परफॉर्म करते हैं वो हमने डिस्कस किया है डिटेल में, तो प्लीज़ आप पुराने वीडियो में जाके देखिए उसको, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ओके। तो वो कॉल HPLC सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, एक्यूरेट एनालिसिस के लिए, या तो फिर मेजर अगर HPLC में रिपेयर्स ना हो, इसके लिए हम सिस्टम सुटेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं HR क्वेश्चन, जो कि हमेशा पूछा जाएगा, तो आपका प्रिपरेशन टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ HR क्वेश्चन के साथ भी होना चाहिए, ओके। सो व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड, ओके। तो व्हाट विल बी योर आंसर, okay। So first of all, before going for interview of any company, you should always research about the company। तो वो कंपनी का गूगल में जाके वेबसाइट पे जाइए, चेक करिए कि what is the कंपनी मेकिंग, तो कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, कंपनी के लोकेशंस क्या कहाँ कहाँ पे है, ओके। तो कंपनी के सर्टिफिकेशंस भी चेक करिए कि वेदर इट इज हैविंग अ GMP सर्टिफिकेशन, वेदर इट इज हैविंग अ EU GMP सर्टिफिकेशन, वेदर इट इज हैविंग अ US FDA सर्टिफिकेशन। तो ये सारा भी आपको होमवर्क करना पड़ेगा, ओके। अगर आपने इसका तीनों का होमवर्क किया होगा तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे, ओके। तो आपके पास ऐसा आंसर होना चाहिए दैट योर कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन, तो ये आप तभी बोल पाएंगे जब आपको ये 3 चीजें पता होगी, ओके। तो इसमें अगर US FDA है, EU GMP है, ओके, या GMP स्टैंडर्ड की भी कंपनी है, तो वो एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है जो रेगुलेटरी कंप्लायंस को मेंटेन करती है, ओके। आई वांट टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच फॉलोज द ग्लोबल GMP, ओके। तो EU GMP है या US FDA है, तो वो फॉलो करती है, ऐसी कंपनी में आप काम करना चाहेंगे दोस्तों, फॉर हायर सैलरी प्रॉस्पेक्ट्स एंड ऑल्सो for future promotions, okay। So I believe that this role will help me to grow professionally while contributing and maintaining high product quality, okay। तो ये जो है वो आपको इसी तरीके से आंसर देना है दोस्तों कि आपको ये कंपनी क्यों प्रिफर है और आपके पर्टिकुलर रीजंस क्या है वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो, ओके। और इसके साथ साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में कि व्हाट इज जीसी के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं, ट्रबल शूटिंग पार्ट क्या है जीसी का, ओके। सो आप अगला वीडियो देखना ना भूलिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज।
जय हिंद दोस्तों।